Hello students, welcome in this lecture. We are discussing about the phylum Porifera. तो पोरीफेरा में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द सेल्स. तो अमॉन्ग दीज सेल्स वी हैव बीन डिस्कस अबाउट द पिनेकोसाइट्स. Pinacocyte responsible for the formation of the external layer of the body. In other words, we can say it is responsible for the formation of outer wall of the animal. Second is that porocyte. Porocyte responsible for the formation of pore or ostia. Next cell was coenocytes. Coenocytes is also known as the collar cells. These cells are the characteristic features of poriferans, and these cells responsible for the generation of water current. It is also responsible for the food capturing and responsible for the digestion of food. You must remember in poriferans the digestion occur only intracellular. What is mean of the intracellular? Intracellular means digestion occur inside the cell. It is a very interesting note. So in poriferans, digestion occur inside the cell. If the digestion occur inside the cell, this is called the intracellular digestion. तो पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में केवल पोरीफेरा एक ऐसा फाइलम है जिसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. बाकी और किसी के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को नहीं मिलता है. सिलेंटेट्स की बात करें तो सिलेंटेटा में, फाइलम सिलेंटेटा में एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर दोनों देखने को मिलते हैं. उसके ऊपर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट, नॉट इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट. बट इन फाइलम पोरीफेरा only intracellular digestion present. तो it become clear. उसके बाद जो नेक्स्ट सेल है वो है अमीबोसाइट सेल्स. ठीक है, अमीबोसाइट सेल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स. तो नेक्स्ट सेल इज द अमीबोसाइट्स. These cells give rise the pinacocyte and coenocyte cells. So amoebocytes is a very important cell of poriferans. It is responsible for formation of it gives rise pinacocyte, coenocytes and archaeocyte cells. So you must remember that amoebocytes, it is responsible for the formation of pinacocyte cell, formation of coenocyte cells and formation of archaeocyte cells. So it is very important cell. In many examinations the question asked that what is source of the formation of archaeocyte cells. So you must remember the archaeocyte cells formed from amoebocytes. तो archaeocyte cells का formation किससे होता है? amoebocyte cells से होता है. कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. Now we discuss about the next cell, archaeocyte cells. The next cell is that archaeocytes. The next cell is that archaeocyte cells. Oh, what is the function of archaeocytes? Archaeocyte is the
टोटीपोटेंट सेल ऑफ द स्पॉन्ज। आर्कोसाइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण सेल होती हैं और इन्हें हम टोटीपोटेंट सेल के नाम से जानते हैं। इट इज टोटीपोटेंट सेल ऑफ sponges. Here, the question arises that what is the meaning of the totipotency? Totipotency is a capability of any cell in which any cell develop the entire body of an organism. तो हम लोग क्या समझे? What we understand? Totipotency means efficiency of any cell that can give rise the entire body of an organism. कोई भी सेल की ऐसी इफिशियंसी जिसके थ्रू एक सेल से पूरे के पूरे एंटायर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो सकता है, तो उस कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी के नाम से जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम जाइगोट को देखते हैं, तो जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और जाइगोट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो जाइगोट एक तरह से क्या हो गया? टोटीपोटेंट सेल हो गया। ठीक है, उसकी एक कैपेबिलिटी कि जाइगोट से पूरा का पूरा इंटायर एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टोटीपोटेंसी। उसी तरह से आप देखिए एट अ टाइम ऑफ क्लोनिंग की बात करते हैं। आपने क्लोनिंग सुना होगा, डॉली करके क्लोन तैयार किया था। तो क्लोनिंग में भी क्या होता है? एक सेल लिया हमने, जो भी सेल हमने लिया बॉडी का सेल, उसको हमने क्या बोला? स्टेम सेल। और स्टेम सेल को कल्चर मीडियम में ग्रो कर उससे हम पूरे के पूरे एंटायर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वो भी कैपेबिलिटी क्या हो गई? टोटीपोटेंसी। तो यह क्या हो गया कि यह हमारे स्पॉन्ज की जो आर्कोसाइट सेल्स हैं, these are the totipotent cell of the sponges. They can give rise any type of the cell of sponge. यह स्पॉन्ज की किसी भी सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्कियोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? योर आंसर विल बी दिस सेल अराइज फ्रॉम द अमीबोसाइट्स। इन सेल्स का फॉर्मेशन कहां से होता है? अमीबोसाइट से होता है। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट आर्कियोसाइट सेल्स फॉर्मेट द एनी टाइप ऑफ द सेल्स ऑफ स्पॉन्ज। At the time of the sexual reproduction, these cell responsible for the formation of spermatozoa or sperm, and these cell also responsible for the formation of ovum. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय यही आर्कियोसाइट सेल्स स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन करती है। इट बिकम क्लियर? ये पूरी तरह से क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की सेल डिस्कस करेंगे, आर्कियोसाइट सेल। क्लियर? इस पर कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फॉलोइंग सेल इज द टोटीपोटेंट सेल ऑफ स्पॉन्जेस। कौन सी सेल हमारी स्पॉन्ज की टोटीपोटेंट सेल है? देन योर आंसर विल बी आर्कियोसाइट सेल्स। नेक्स्ट सेल, उस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, वो कौन सी सेल्स हैं? थियोसाइट्स। थियोसाइट्स, इट इज फूड स्टोरिंग सेल्स। फूड स्टोरिंग सेल ऑफ द स्पॉन्जेस। ये हमारे स्पॉन्ज की बॉडी की फूड स्टोरिंग सेल्स होते हैं। इनमें फूड मटेरियल का स्टोर होता है। किसके अंदर? थियोसाइट्स के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेल के बारे में। तो थियोसाइट सेल्स, और थियोसाइट इज ऑल्सो नोन एज
थियोसाइट सेल्स। तो थियोसाइट और थियोसाइट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्टोरिंग in the body of sponges. Spongoblast cells. Spongoblast cell responsible for formation of sponge fiber in the body of sponges. Sponges की बॉडी में जो स्पंज फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? स्पंजोब्लास्ट सेल की वजह से होता है। नेक्स्ट स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स. Scleroblast cell is also very important cell of the body of sponge. These are responsible for the formation of sponge skeletal elements. तो स्पंज स्केलेटल एलिमेंट्स में मेनली आते हैं हमारे स्पिकुलस, ये कांटों की तरह होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है? स्क्लेरोब्लास्ट सेल. नेक्स्ट इज द जर्म सेल्स. Germ cell responsible for the reproduction, more correctly, sexual reproduction. So germ cells give rise the spermatozoa or sperm and ovum. The question is arise that कि all these type of the cell जो स्पंज की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो all these cells are developed from the amoebocytes. ये सभी सेल्स अमीबोसाइट से डेवलप होती हैं एंड हेंस वी कैन से दैट अमीबोसाइट सेल इज द वंडरिंग सेल ऑफ द स्पंजेस. अमीबोसाइट सेल्स स्पंज के अंदर की अमीबोसाइट सेल्स वंडरिंग सेल्स हैं. इट बिकम क्लियर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जेस. अब हम स्पॉन्जेस के और भी ढेर सारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. सपोज दैट नंबर 1 इज दैट कैनाल सिस्टम ऑफ बॉडी. तो हम बात करेंगे कैनाल सिस्टम ऑफ बॉडी. इन अदर वर्ड वी कैन से वाटर vascular system. In the body of sponges, specific type of the water transport system are present. The name of this transport system is that water canal system. तो स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर एक यूनिक टाइप का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है. The unique type of the water transport system present in the body of the sponges. तो एक यूनिक टाइप का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा. दिस इज नोन एज यूनिक टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा. दिस इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम. दिस इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम. इस सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम के नाम से हम जानते हैं. द क्वेश्चन इज अराइज व्हाट इज ये कैनाल सिस्टम. वाटर कैनाल सिस्टम क्या है? तो वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि देखिए स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर जो ऑस्टिया है तो वाटर जो है आउटसाइड से ऑस्टिया के थ्रू कहा जा रहा है बॉडी स्पॉन्ज की बॉडी कैविटी में जा रहा है. द नेम ऑफ द बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्ज इज स्पंजोसिल. और उसके बाद यहां से वाटर ऑस्किलम से होता हुआ आउटसाइड में चला जाता है. तो वाटर का क्या हो रहा है जरा देखिए स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर. दीज आर द वेरी स्मॉल न्यूमेरस ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस.
तो इन न्यूमेरस पोर्स जो कि स्पंज की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, दिस नोन एज ऑस्टिया। इसे अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। तो यहां से जो सी वाटर है वो कहा जा रहा है, स्पंज की बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है। तो ऑस्टिया से वाटर स्पंज की बॉडी के अंदर गया एंड हेंस ऑस्टिया बिकम द इनकरेंट पोर। यहां से पानी अंदर जा रहा है ऑस्टिया से, तो ऑस्टिया से को हम क्या बोल सकते हैं, इनकरेंट पोर। और यहां से पानी कहां पहुंचा, वाटर यहां से पहुंचा कहां पर, वाटर यहां से कहां पहुंचा, स्पॉन्जोसील में पहुंचा। और ऊपर सबसे टॉप पर ही आपको जो ओपनिंग दिख रहा है, दिस इज नोन एज द ऑस्क्यूलम। और ऑस्क्यूलम से जो सी वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। तो भाई एक टाइप का एक कैनाल सिस्टम स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। The unique type of the water canal system present inside the body of the sponges. इसमें हो क्या रहा है, in this system the numerous opening present on the body of sponges. This numerous small opening is known as the ostia. यहाँ से बॉडी के अंदर पानी की एंट्री हो रही है। पानी कहाँ पहुंचा, स्पंजोसील में पहुंचा। स्पंजोसील से वाटर ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर निकल गया। तो ऑस्कुलम को हम क्या बोल सकते हैं, ऑस्कुलम इज आल्सो नोन एज द एस करंट पोल। इट इज आल्सो नोन एज तो ऑस्कुलम इज नोन एज एक्स करंट पोर। इसे हम क्या बोलते हैं, एस करंट पोर के नाम से जानते हैं। तो इट बिकम क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो वाटर कैनाल सिस्टम पे कई बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, इट बिकम क्लियर। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। तो भाई इसके इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम कुछ समय पहले जब मैंने कॉइनोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसकी बॉडी के अंदर ये पूरा का पूरा जो वाटर करंट जनरेट हो रहा है ये किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इसकी बॉडी का जो इनर लेयर है उस पूरे के पूरे इनर लेयर में क्या प्रेजेंट है, कॉइनोसाइट सेल्स हैं। और कॉइनोसाइट्स के जो फ्लेजेला होते हैं वो रिदमिक मूवमेंट करते हैं। रिदमिक मूवमेंट करने की वजह से क्या होता है, रिदमिक फ्लेजेलर मूवमेंट करने की वजह से क्या होता है कि वाटर इस तरह से मूव आउट करता है। ठीक है, तो द रीजन ऑफ कॉजेज ऑफ वाटर करंट इज दैट फ्लेजेला ऑफ कॉइनोसाइट सेल्स। यू बिकम क्लियर, ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, इसका इंपॉर्टेंस है, इसके फंक्शन क्या है। नंबर 1, हेल्पिंग फूड कैप्चरिंग। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बॉडी से जो ट्रांसपोर्ट होता है बाहर निकलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू निकलते हैं। एंड गैमेट्स, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड गैमेट में भी ये हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज।
Each and every cells of the body of sponges contact with the sea water with the help of water canal system. तो ये गैसी सेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प इन द फूड कैप्चरिंग, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन और एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट. It is also help in the gaseous exchange. So these are a function of water canal system. Now we discuss about the skeleton of body. अब हम बात करेंगे बॉडी का स्केलेटन किस टाइप का होता है उसके बारे में. If we discuss about the skeleton of body, you must remember only endoskeleton present in the body of sponges. Next, these skeleton made by sponge fiber and spicules. We previously discussed that sponge fiber made by spongoblast cells and spicules. तो यह स्केलेटन किसके थ्रू बना होता है? स्पंज फाइबर के थ्रू बना होता है और स्पिक्यूल्स के थ्रू बना होता है. स्पंज फाइबर कोलेजन प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर है. स्पंज फाइबर मेड बाय द कोलेजन प्रोटीन and spicules made by either silicon oxide or calcium carbonate. तो spicules हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, these made by the silicon oxide और calcium carbonate. एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. तो स्केलेटल सिस्टम काम क्या करता है? स्केलेटल सिस्टम बॉडी की सभी सेल्स को मैनेज करके रखता है, क्योंकि ये स्पंज जो फाइबर्स होते हैं यह सेल्स को सेपरेट नहीं होने देते हैं. एंड जो स्पिक्यूल्स होते हैं यह एनिमल की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. जो भी प्रीडेटर होते हैं सी के अंदर, जो भी शिकारी एनिमल होते हैं सी के अंदर, उनसे इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, इट बिकम क्लियर. नेक्स्ट इज दैट फूड and digestion. डाइजेशन में हम कह चुके हैं, पहले बता चुके हैं आपको कि डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोइनोसाइट सेल्स. कोइनोसाइट सेल्स वाटर करंट को प्रोड्यूस करते हैं. कोइनोसाइट सेल्स फूड कैप्चरिंग करते हैं और कोइनोसाइट सेल्स फूड मटेरियल का डाइजेशन भी करते हैं. ठीक है, तो इसमें डाइजेशन जो स्पॉन्ज की बॉडी में होता है वो कौन सा होता है? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. You must remember only intracellular digestion present बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस. केवल इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमें देखने को मिलता है. अब देखो स्पॉन्जेस की बॉडी में क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं. उसके बाद जो है इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है, मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. और डाइजेशन कैसा हो रहा है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है. इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब वो डाइजेशन कहाँ होगा? डाइजेशन ऑकर इनसाइड द सेल. अब सेल के अंदर कहाँ डाइजेशन होगा? सेल के अंदर डाइजेशन जो होता है वो होता है फूड वैक्यूल्स के अंदर. किसके अंदर होगा? फूड वैक्यूल्स के अंदर होगा. यू मस्ट रिमेंबर इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम्स प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन. अब हम एनिमल के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का रिप्रोडक्शन एनिमल की बॉडी के अंदर देखने को मिलता है.
तो रिप्रोडक्शन को लेकर बात करें तो हम क्या देखते हैं, स्पॉन्ज में दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट इज दैट asexual reproduction and second is sexual रिप्रोडक्शन। तो दो तरह का रिप्रोडक्शन स्पॉन्ज की बॉडी में देखने को मिलता है। फर्स्ट asexual reproduction एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो तरह का रिप्रोडक्शन हमें स्पॉन्ज की बॉडी में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द asexual reproduction। asexual reproduction में क्या होगा, देखिए asexual reproduction की कई मेथड होती हैं। asexual reproduction किसको बोलते हैं, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसे हम asexual reproduction के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द asexual reproduction? Asexual reproduction is the type of reproduction in which meiosis and fusion of gamete is not occur। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे asexual reproduction। तो asexual reproduction की मेथड्स में कौन कौन सी मेथड्स हैं? नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या, बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी फ्रेगमेंट यदि सेपरेट हो जाता है तो दिस फ्रेगमेंट कैन जनरेट न्यू इंडिविजुअल। इफ एक्सीडेंटली एनी फ्रेगमेंट ऑफ बॉडी सेपरेटेड, they can arise the new individual. So this type of reproduction is known as fragmentation. Second is that regeneration. What is the regeneration? Regeneration means if the any part of body of sponge become damaged, it will be regenerate. If any part of the sponge body become degenerate, it again generate with the help of cell division. तो यदि बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, तो वो दोबारा से जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया रिप्रोडक्शन का? रीजेनरेशन। Next is the budding. बडिंग में क्या होता है? बडिंग में हम देखते हैं कि एक छोटा सा प्रोटुबेंस, वेरी स्मॉल प्रोटुबेंस क्रिएट इन द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज। एक छोटा सा प्रोटुबेंस स्पंज की बॉडी में क्रिएट हुआ एंड आफ्टर द few hours or few days, this protubent detached from the main body and develop the new individual. So very small protubents create in the body of the sponges. They grow and detach from the main body and develop the new individual. बडिंग में क्या होता है, एक छोटी सी आउटग्रोथ एनिमल की बॉडी में डेवलप होती है, ये थोड़ी सी ग्रोथ करती है, बाद में मेन बॉडी से सेपरेट हो जाती है और एक नया इंडिविजुअल बनाएगी। डायग्राम में देखिए, ये छोटी सी आउटग्रोथ बनी, ये थोड़ी सी ग्रोथ करेगी, बाद में इस मेन बॉडी से सेपरेट हो जाएगी और नए इंडिविजुअल को डेवलप करेगी। नेक्स्ट इज द जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल बडिंग। इसे हम इंटरनल बडिंग के नाम से जानते हैं।
Jamil formation is also known as the internal budding. In Jamil formation, the archaeocytes play the very important role. इसमें क्या होगा कि स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर की सभी सेल डिजेनरेट हो जाएंगी और स्पॉन्ज के अंदर की आर्कियोसाइट सेल्स ग्रोथ करेंगी। ग्रोथ करने के बाद आर्कियोसाइट सेल्स का एक क्लस्टर बन जाएगा स्पंज की बॉडी। स्पंज की बॉडी एक छोटे से बॉल लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसमें ढेर सारी आर्कियोसाइट सेल्स भरी हुई हैं। और यह जो बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर बना है वह हैजार्डियस एनवायरमेंट में, ड्राई एनवायरमेंट में इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। यह ऐसा डला हुआ रहता है सराउंडिंग में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो यह डेवलप हो जाता है। जैसे इसमें वाटर जाएगा यह बॉल लाइक स्ट्रक्चर बस्ट हो जाएगा, इसमें से आर्कियोसाइट सेल्स पानी के अंदर स्प्रेड हो जाएंगी एंड ईच एंड एवरी आर्कियोसाइट सेल्स ग्रो द न्यू इंडिविजुअल। तो इस तरह की जो मेथड होती है इसे हम बोलते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन, क्योंकि जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना था उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, जेम्यूल। उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हमने जेम्यूल के नाम से जाना। ठीक है, बट यू मस्ट रिमेंबर, अब ड्राई कंडीशन सी में तो आ नहीं सकती, केवल फ्रेश वाटर सोर्सेस में आएगी एंड हेंस जेम्यूल फॉर्मेशन ऑकर ओनली इन द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, या केवल फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, सी वाटर स्पॉन्जेस में यह देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिला करके एक स्पॉन्ज है, उसमें यह मेथड देखने को मिलती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम। अब इसके बाद हम इस फाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को लेकर डिस्कस करेंगे। So first example is that cycon. It is now known as skyma. Cycon और skyma, ये कैसा दिखाई देता है? तो ये इस तरह का एनिमल देखने को मिलता है स्काइफा। इसका कॉमन नेम जो है वो है क्राउन स्पॉन्ज। कॉमन नेम इसका क्या है, क्राउन स्पंज। इट इज ऑल्सो नोन एज अर्न स्पॉन्ज। तो स्काइफा, इसके हम क्राउन स्पंज के नाम से भी जानते हैं, इसे हम अर्न स्पंज के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ मराइन वेराइटी ऑफ स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्ज की मराइन वेराइटी है। नेक्स्ट, next is Eospongia. Next variety is that Eospongia. ये कुछ ऐसा होता है। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, क्या है,
ऑस्टिया, ये बड़ा होल दिख रहा है, ये क्या है? ऑस्टिया। तो यू स्पॉन्जिया इज नोन एज द बाथ। इसका जो कॉमन नेम होगा यू स्पॉन्जिया का, वो क्या होगा? बाथ स्पंज। इसमें जो इसका स्केलेटन में ओनली स्पॉन्ज फाइबर्स आर प्रेजेंट। Only sponge fibers are present. Spicules absent. So next is that bath sponge. Bath sponge, scientific name Euspongia. इसके स्केलेटन में स्पॉन्ज फाइबर प्रेजेंट है, बट स्पीक्यूल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के हो सकते हैं या सिलिकॉन ऑक्साइड के हो सकते हैं, वो इसकी बॉडी के अंदर अब्सेंट है। अब इस मतलब इन अदर वर्ड हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसकी बॉडी के अंदर कांटे नहीं है। कांटे नहीं है इसकी बॉडी में, केवल फाइबर्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो इन एंशिएंट टाइम एंड मिडाइवल टाइम ऑफ यूरोप के अंदर लोग इसे नहाने के लिए यूज करते थे, बाथ के लिए इसका यूज किया जाता था। सी के अंदर से इनको निकाला जाता था, निकाल कर इनको सुखाया जाता था, सुखाने के बाद अच्छी तरह से इनको धोया जाता था, पीटा जाता था, जिससे कि केवल फाइबर रह जाते थे, बाकी बॉडी के अदर सेल्स रिमूव आउट हो जाते थे। उसके बाद इनको बाथ के लिए, नहाने के लिए यूज किया जाता था, इसलिए इसे हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। इट इज वेरी पॉपुलर इन द एंशिएंट एंड मिडाइवल यूरोपियन हिस्ट्री। नेक्स्ट इज स्पॉन्जिया। Next is spongilla. Spongilla is the freshwater sponge. Common name इसका यही है. It is also known as the freshwater sponge. इसमें असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, it is occurred by gemule formation. ये किसके थ्रू देखने को मिलता है? जेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू देखने को मिलता है। अब स्पॉन्जिला कैसा होता है? फ्रेश वाटर सोर्सेस, पानी में जो तालाब का पानी हो गया, झील का पानी हो गया, लेक का वाटर हो गया, पॉन्ड्स के अंदर, लेक के अंदर छोटी मोटी जो ट्विग्स या जो लकड़ी पानी में तैरती रहती हैं, सपोर्टेड ये कोई ट्विग है जो वाटर के अंदर सरफेस पर तैर रही है। तो इस ट्विग के ऊपर स्पॉन्जिला कुछ इस तरह से चिपका हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से स्पॉन्जिला, इसमें आपको पूरी बॉडी में छोटे छोटे ऑस्टिया दिखाई देंगे और बीच में आपको इस तरह के बड़े से ऑस्किलम देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह का होता है स्पॉन्जिला। इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रेश वाटर स्पंज। तो इसे हम फ्रेश वाटर
स्पंज के नाम से जानते हैं। स्पंजिला क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये 3 मेन एग्जांपल्स हैं एज पर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, जिनमें से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा हम कुछ और एनिमल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि यूप्लेक्टेला। तो नेक्स्ट यूप्लेक्टेला। तो यूप्लेक्टेला इज नोन एज, कॉमन नेम इसका है यूप्लेक्टेला का वीनस फ्लावर बास्केट। तो इट इज कॉमनली नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट। यूप्लेक्टेला को जापान के अंदर एज अ वेडिंग गिफ्ट यूज किया जाता है। तो जापान में इसका यूज जो है वो वेडिंग गिफ्ट में करते हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज गिफ्ट में जो देने के लिए जो गिफ्ट, सबसे महंगा जो गिफ्ट वहां यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट is that Cherina. And Cleona. So Cleona is known as boring sponge. क्लियोना को हम बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं। इसे बोरिंग स्पंज क्यों कहते हैं क्लियोना को? क्लियोना कुछ इस तरह से ग्रो होता है और जिस भी सरफेस पर ये क्लियोना ग्रो होगा तो ये क्या करता है कि वो जिस सरफेस पर भी ग्रो होता है, जिस सबस्ट्रेटम के ऊपर ये क्लियोना ग्रो होता है, उस सबस्ट्रेटम में छोटे छोटे पोर क्रिएट कर देता है। क्लियोना इज वेरी हार्मफुल फॉर पर्ल कल्टीवेशन और पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर में हम क्या करते हैं, किसको ग्रो कर रहे हैं? ऑयस्टर्स को ग्रो करा रहे हैं। ऑयस्टर्स कहाँ होते हैं? बॉटम में ग्रो होते हैं। ऑयस्टर्स के ऊपर क्लियोना ग्रो हो गया तो क्या करेगा? ऑयस्टर्स की बॉडी में छोटे छोटे होल प्रोड्यूस कर देगा, इससे ऑयस्टर्स की डेथ हो जाएगी। तो पर्ल इंडस्ट्री में हम ऑयस्टर्स का यूज कर रहे हैं। पर्ल इंडस्ट्री में किसका यूज कर रहे हैं? पर्ल ऑयस्टर्स का यूज कर रहे हैं। तो स्टारफिश और क्लियोना ये दोनों के दोनों बहुत ही हार्मफुल माने जाते हैं। किसके लिए? पर्ल कल्चर के लिए। तो बोथ आर वेरी हार्मफुल फॉर पर्ल कल्चर। बोथ मीन्स Cleona and starfish. Next is the Cherina. Cherina is known as dead man fingers. डेड मैन चेरिना जो होता है सी बॉटम में कुछ इस तरह से ग्रो होता हुआ दिखाई देता है।
कुछ इस तरह से ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी मरे हुए मैन की फिंगर्स हैं। तो चेलिना को हम डेड मैन फिंगर्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मर्मिट ग्लोब्स, जिसे मर्मिट ग्लोब्स के नाम से भी जानते हैं। बट मोस्ट पॉपुलर बर्ड इज डेड मैन फिंगर्स। तो फाइलम पोरिफेरा में इतना इनफ है। थैंक यू।